Hey everyone, and welcome to Maybe Muslim. I'm Mariam Haider, producer and host of the podcast. And in this conversation, I am speaking with Shabnam Nafisa Kalim, a resident of Mustafabad, a predominantly Muslim suburban area in northeast Delhi, where she and her team of volunteers run two libraries to create a learning and educational space for their community. Mashal Library and Amma's Library have over the years become spaces of educational resources to prepare Mustafabad's youngsters for competitive examinations and support the local community through adult literacy programs, career counseling, and mental well-being sessions. In this interaction, Shabnam also sheds light on managing internal community challenges, ensuring that libraries are acknowledged as fundamental needs for younger generation, where girls and women can spend time without being questioned by their families, and women recognize the value of their time away from family responsibilities. This kind of effort has resulted in more women coming to these libraries and encouraging others to join too. This is a truly special episode that shows Shabnam's commitment to build and foster a space for young and eager minds of her community, ensure their educational needs are well accounted for, and in the process underscore the fundamental importance of quality education. Hey Shabnam, welcome to Maybe Muslim. Thank you for being here. Thank you so much, Mariam, for asking me to be here. I have been following the work that you have been doing through the library initiative, and I actually got to know about you through that Instagram page. And I was really keen to, know more about your work and also your story. So thank you for coming on the podcast again. And maybe we can just start with, introducing yourself. Like, can you share a bit about your background, your family's journey, and your early life growing up? Yeah, sure. So basically, I belong to Bihar, uh, but all my upbringing, my studies, and even job, everything, it's just like दिल्ली में ही हम लोग हैं, तो दिल्ली में ही हम लोग सारा स्टडीज वगैरह सब कुछ हुआ। फैमिली बिहार से शिफ्ट हो गई थी जब हम लोग काफी छोटे थे। इवन आई वाज नॉट इन मेरा पैदाइश भी नहीं हुआ था। तब की बात है ये, जब फैमिली जो है मम्मी पापा वो शिफ्ट हो गए थे, पेरेंट्स यहाँ दिल्ली में फॉर द सेम पर्पस की अ, अ, रोजगार के लिए। अ, जैसे मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि वो चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं। अ, उसी तरीके से पापा और अम्मी, मेरे पेरेंट्स जो है यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। एक लंबे टाइम के बाद फिर सारी चीजें यहाँ पर सेटल होना, घर होना, हम सारे जो सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, सबका स्टडीज, सबका जॉब, सब कुछ यहीं पर हम लोगों का शुरू होना। तो इट्स लाइक दैट। How did you arrive at the idea of starting Amma's Library? And ओके। what has been sort of like your, in a way, inspiration to. ओके। तो इट वाज अबाउट टाइम जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, और गवर्नमेंट स्कूल्स में लाइब्रेरीज और कंप्यूटर लैब्स कहने के लिए होते हैं, उन पर हमेशा ताला ही रहता है, लॉक लगा रहता है। वो जब इंस्पेक्शंस के लिए आते हैं लोग, अ, तब उसके बाद उस पर, उन लैब से, उन लाइब्रेरी से ताला खुलता है और 10 बच्चे बिठा करके फोटो क्लिक करते जाते हैं। तो अपना जो कॉन्सेप्ट था, अ, उस स्कूल टाइम पे, मतलब 2015 14 के टाइम पर, 10 साल पहले कुछ ऐसा खास नहीं था कि अच्छा लाइब्रेरी की जरूरत क्यों पड़ सकती है। और जब रियलाइज हुआ, जब स्कूल बंद हो गए, जब हम लोग ने स्टार्ट किया एग्जाम का प्रिपरेशन करना, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का, तब रियलाइज हुआ कि लाइब्रेरी भी जरूरत बन सकता है। बट वी यूज टू लिव इन सिलमपुर एरिया। दिल्ली का जो सिलमपुर एरिया है, कमर्शियल एरिया में काउंट होता है। और बिकॉज पापा का जो बैकग्राउंड था वो उस तरह का था कि वो फैक्ट्री एरिया में रहना उस वक्त जरूरी था। तो वहां पर हमको कोई स्पेस मिला नहीं। इट वॉज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ स्लम एरिया, यू नो। तो वहां पर पॉसिबल नहीं था कि हमको लाइब्रेरी मिलता, और जो लाइब्रेरी थी वो भी 3 3 4 4 किलोमीटर दूर हुआ करती थी, जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज होते थे।
इवन प्राइवेट लाइब्रेरीज हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे एट दैट टाइम। तो ये कमी वहीं से शुरू हो गई थी फील होना कि ऐसी चीजें हम लोगों के एरिया में क्यों नहीं है। हालांकि जरूरत बहुत है, हालांकि अपने जैसे स्टूडेंट्स उस वक्त भी बहुत थे और अब भी बहुत है हम्म। जिनको लाइब्रेरी जैसे सेटअप की जरूरत हो सकती है, और एक ऐसे सेटअप की जरूरत जहाँ पर उनसे कोई बहुत बड़ा अमाउंट डिमांड ना किया जाए पढ़ने भर के लिए। आई डोंट थिंक कि पढ़ने के लिए किसी से फीस लेना चाहिए। मेरा वो आइडिया नहीं है कि अगर कोई पढ़ना चाहता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उससे उसका वो राइट ही छीन ले जस्ट बिकॉज उसके पॉकेट में पैसा नहीं है। तो सिमिलर हैपन विद अस। कॉलेज एंट्रेंस के एग्जाम के दौरान लाइब्रेरी हमको मिले नहीं, और फिर उसके बाद कॉलेज का वो 3 साल 2018 तक इट वाज लाइक कि आइडियाज चेंज होने का दौर था। लगा कि अच्छा बहुत सारी चीजें अदर एरियाज में इसकी नॉन मुस्लिम एरियाज में मोस्टली, बिकॉज मुस्लिम एरियाज में तो हम लोगों के पास कोई पार्क नहीं होता, सिंपली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कुछ भी। एक घेटो है एक, उस घेटो में हम लोग सिर्फ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ना बेसिक सी साफ सफाई जिसको आप बोल सकते हैं गली मोहल्लों में, वो भी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अटेंशन एमसीडी की तरफ से जैसा नॉन मुस्लिम एरियाज में दिया जाता है वैसा मुस्लिम लोकेलिटीज में नहीं दिया जाता। मेन रीजन ये है। तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ा डिस्टर्ब किया करती थी उस वक्त कि क्यों हम लोग इतना बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं, क्यों हमारे एरियाज बैकवर्ड है। जब थोड़ा समझ आया दुनिया को देखने का, चीजों को समझने का, पॉलिटिक्स क्या है, सोसाइटी क्या है, जब ये चीज समझ में आई तब लगा कि इसके पीछे एक राजनीति है, एक पॉलिटिक्स है जो चल रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है कि किस एरिया पर कैसा अटेंशन या कैसा काम या कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, और किस एरिया को यूं ही अबैंडन कर देना चाहिए। तो लगा कि अब जो है लीडर्स के ऊपर, नेताओं के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर भरोसा करके हम हमारी जिंदगियों को नहीं छोड़ सकते। और उस दौरान ये एंटी सीए का प्रोटेस्ट शुरू हो गया था 2019 का एंड में। तो जब उसको ज्वाइन किया और अपने एरिया का जो प्रोटेस्ट था मुस्तफाबाद का, मैं मुस्तफाबाद में ही रहती हूँ, तो यहाँ पर जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो आई ऑल्सो ज्वाइन। लोकल लोगों के साथ उठना बैठना, लोकल औरतों के साथ उठना बैठना, वो जो 40 डेज का वो प्रोटेस्ट था। और काफी कुछ, ना सिर्फ हम लोगों ने वहां पर बैठ करके प्रोटेस्ट किया था, हम लोग, मेरे साथ और भी औरतें, हम लोग बैठ करके बातें किया करते थे कि क्यों हालात ऐसे हैं, अपने सोसाइटी के हालात इस कदर खराब क्यों हैं, क्यों हमारे पास छोटी छोटी बेसिक बेसिक फैसिलिटीज अपने एरियाज में नहीं है, इसका जिम्मेदार ऑब्वियसली कौन है। तो कंक्लूजन ये निकलता था, जिम्मेदार ना सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जिम्मेदार कहीं ना कहीं लोकल की पब्लिक भी है कि वो स्टैंड नहीं ले रही है अपने लिए। हम इंतजार कर रहे हैं, हालांकि ड्यूटीज उनकी है, फर्ज उनका बनता है, जब वो वोट ले करके आते हैं, लेने के लिए आते हैं और वोट ले करके फिर उस सीट पर बैठ जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पूरे एरिया को, तो उनका फर्ज बनता है कि वो ये काम करें। लेकिन अगर करप्ट पॉलिटिशियन मुस्ताहाबाद का नसीब बन गया है पिछले 15 साल से, वी कांट वेट ना कि वो लोग आए, वो लोग ही चेंज करें, वो लोग ही स्टैंड लें, वो लोग ही अपनी ड्यूटीज को पूरा करें। वो अगर नहीं भी कर रहे हैं, ये सिमिलर सिचुएशन पूरा कंट्री में है कि बड़े सारे जगह पर जो लीडरशिप इस तरह का होता है, करप्ट लीडरशिप होता है, वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, और एरियाज जो उनके अंडर में होते हैं उनका हालत और खस्ता होता चला जाता है। मुझे लगता है कि वहाँ के जिस भी ऐसे एरियाज हैं जो ऐसा सफर कर रहे हैं, आई थिंक कि लोगों को स्टैंड लेने की जरूरत होती है। या तो आप चुने, दिमाग से चुने अपना लीडर, अपने एरिया का लीडर, और अगर वो नहीं हो पाता है तो कम से कम खुद के लिए जो फैसिलिटीज आपको चाहिए उसको आप खुद से उसकी शुरुआत करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि इट हैपेंड, जब हम लोगों का टाइम था, स्कूल का टाइम था हम लोगों का 2015 में 14 में,
कोई ऐसा कुछ ऐसा फैसिलिटी हमको नहीं मिला। कंप्लेन हमने कर लिया कि हाँ ठीक है, यहाँ ऐसा हालात है, हालात खराब है, पॉलिटिशियन नहीं है जो सपोर्ट करे, लोग नहीं है जो सपोर्ट करे। अभी हम लोगों की बारी थी, अभी मेरे जैसे लोगों की बारी थी जो उस दौर से निकल करके आ गए थे, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन अपनी अपनी पोजीशन पे अभी स्ट्रांग स्टैंड करते हैं, फाइनेंशियली, सोशली। तो हम लोगों ने एक्शन लिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वो एक्शन लेने का डिसाइड किया कि क्यों हम इंतजार करें कि कोई और आएगा, कोई और हमारे हालात बदलेगा और हमारे लिए आसानी पैदा करेगा। वो एक्शन हम लोग खुद ले सकते थे और हम लोगों ने खुद से लिया। म, मशाल लाइब्रेरी हम लोगों का दूसरा लाइब्रेरी था जो 2022 में हम लोगों ने शुरू किया था। उससे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था 2020 में, एंटी सीए प्रोटेस्ट मुर्शिदाबाद में, वहां पर पूरा वो टेंट के नीचे होता था, तो एक कोने में हम लोगों ने छोटा सा एक लाइब्रेरी सेटअप किया। उसका नाम रखा था सबकी लाइब्रेरी, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि अदर कम्युनिटी भी उस लाइब्रेरी में एंगेज करे, कि जो बाउंड्री बन गई थी कि सीए प्रोटेस्ट सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, सिर्फ मुस्लिम्स उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। वी वांटेड कि मोर पीपल जो है उसको उसमें शामिल हो, और स्पेशली अदर कम्युनिटी के। इसलिए उस लाइब्रेरी को सबकी लाइब्रेरी का नाम दिया था। और उस लाइब्रेरी में प्रोटेस्ट में शामिल होने वाली औरतें, बच्चे उस लाइब्रेरी का यूज करते थे। हम लोगों ने 500 से ज्यादा किताबें इकट्ठा करके वहां पर उस मेकशिफ्ट लाइब्रेरी में रखी थी। जनवरी और फरवरी, हाँ, फरवरी 25 तक वो प्रोटेस्ट रहा था। तो तब तक वो किताबें वहीं थी, लेकिन जब एंटी पूरा वो रॉयट, वो पोग्राम हुआ था, एंटी मुस्लिम पोग्राम, तो उस वक्त वो किताबें भी वहीं थी। और जब वो सारा डिमोलिशन और पूरा अटैक हुआ था, तो वो किताबें, वो प्रोटेस्ट साइट, वो मस्जिद फारूकिया मॉस्क के बराबर में प्रोटेस्ट था, तो सारी ही चीजें मस्जिद के साथ सब जल गया था, जला दिया गया था, अपने आप नहीं जला था, तो वो जला दिया गया था, किताबें भी जला दी गई थी। तो बड़ा, वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जिसको बोलते हैं हो सकता है, क्योंकि बहुत छोटी सी एक कोशिश थी जो मुस्ताबाद की औरतों ने मिलकर के करी थी। और दुख इस चीज का हुआ था कि किताबें तो बच जानी चाहिए थी, किताबों ने किसका क्या बिगाड़ा है। लेकिन खैर, ये चीजें हुई थी उस वक्त। और फिर उसके फौरन बाद जो है लॉकडाउन, कोरोना सीजन, ये सारा सब कुछ हो गया था। तो हम सारे जो लोग इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट के टाइम पे, जो कमिटमेंट हम लोगों ने, लोकल के लोगों ने किया था कि आफ्टर प्रोटेस्ट हम लोग एक लाइब्रेरी सेटअप करेंगे मुश्ताबाद में, जिसमें हम लोग स्पेशली ख्याल रखेंगे कि जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उनको जो है स्पेशल स्पेस दिया जाए, अ, एक सेपरेट स्पेस दिया जाए कि वो आए, वो पढ़े। क्योंकि बाज दफा लाइब्रेरीज में, प्राइवेट लाइब्रेरीज में भी और ये अपना गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में भी सेपरेट स्पेस नहीं होता है औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। इसलिए खास करके अगर कुछ लड़कियां लाइब्रेरी यहाँ से निकल के जाती भी थी, मुस्लिम लड़कियां, तो उनमें से कुछ में से दो चार ही होती होंगी जो कंटिन्यू करती होंगी। बाकी लोग पर्दे के रीजन की वजह से वो लाइब्रेरी भी नहीं जाती थी। इवन प्राइवेट लाइब्रेरी भी जो अफोर्ड कर सकती थी, वो भी सेम रीजन की वजह से नहीं जाती थी, कि पर्दे का वो बेअदबी होगा। तो अभी जब ये कोरोना का पूरा क्राइसिस हुआ, और एक लंबे टाइम तक, नेक्स्ट 2 साल तक सेम सिचुएशन रहा, लॉकडाउन होना, कोरोना के लिए दोबारा से सारा चीज, पूरा दुनिया, पूरा कंट्री बंद हो जाना, टू अवॉइड दैट डिजीज। तो हम लोग भी चैरिटी और सारा हेल्प में, जो लोकल ग्रुप था वॉलेंटियर्स का, हम लोगों ने शुरू कर दिया था उस वक्त, बिना ये रियलाइज किए कि आने वाले टाइम में हम लोग कुछ एक ऐसा नेटवर्क बना सकेंगे कि 2 लाइब्रेरीज सेट हो जाएंगी, और वो ऐसी लाइब्रेरी जो कम्युनिटी को
बिना कुछ लिए बिल्ड करने के लिए सपोर्ट करेंगी। तो जब ये सारा हम लोगों ने रिलीफ वर्क शुरू किया था, उस वक्त सब लोकल लोग ही थे कि राशन से हेल्प कर दिया, मेडिकल हेल्प कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन का उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत था कि लोग जो बीमार थे उनको हॉस्पिटल जाने के लिए कोई ऑटो, कोई ऐसा व्हीकल नहीं मिल रहा था। तो हम लोग क्या किया करते थे कि 10-12 लोगों का हम लोग का एक ग्रुप था, तो जिनके पास गाड़ी, बाइक, एनीथिंग जो भी था, व्हीकल, तो हम लोग वो ले जा करके और पेशेंट जो होते थे उनको हेल्प कर दिया करते थे। और इसी तरीके से छोटा 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 हम लोग हेल्प करते हुए अपना एक वो जो ग्रुप था, वो लोकल का ग्रुप था, वो एक सोशल मीडिया के ग्रुप में तब्दील हो गया कि जो लोग हेल्प किया करते थे फाइनेंशियली, उनके साथ मिल करके हम लोगों ने एक टाइम पे, ये 2 साल का जब अरसा गुजर गया, तो वे स्टार्टेड डिस्कसिंग कि हम लोग क्या करना चाहते हैं मुस्तकबिल में। क्योंकि पॉग्रॉम वाला जो सारा अटैक था और कोरोना वाला जो सारा सिचुएशन था, लॉकडाउन का, वो सब खत्म हो गया था। हालांकि सबका इम्पैक्ट था और आज तक उसका इम्पैक्ट है, लेकिन ये सारी चीजें जब खत्म हो गई तो उसके बाद था कि अभी क्या करना है। तो काफी हिम्मत जुटा करके लोगों से डिस्कस करना शुरू किया कि हमको जो है मुस्ताबाद में एक लाइब्रेरी खोलनी है, और वो लाइब्रेरी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो उसके लिए जो उसका पूरा एक्सपेंस रहेगा, उस एक्सपेंस के लिए, उस फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हमको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो अपने ही सोसाइटी में थोड़ा मजबूत ओहदे पे, मजबूत फाइनेंशियल मजबूत स्टेटस पे हो, जो कंटिन्यू एक लॉन्ग टर्म के लिए हमको सपोर्ट कर सके। तो 2022 से हम लोगों ने सब कुछ शुरू किया, और साल भर हमको लगा, 2023 में अपना मशाल लाइब्रेरी मुसाबाद में खुल गया। साल भर में बहुत सारे लोगों से रिजेक्शन, आप मान लें कि अगर 20 लोगों को हम लोगों ने अप्रोच किया होगा, तो 20 में से 17 लोगों ने ये जो हम लोगों का आइडिया था उसको रिजेक्ट किया। और बाज दफा ये भी बोला गया कि मुस्ताबाद में अगर आप खोलना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप बिरयानी का दुकान खोलें, आप लाइब्रेरी क्यों खोल रही हैं? लाइब्रेरी खोलेंगे तो नुकसान होगा। तो ये थोड़ा फनी लग रहा है अभी, लेकिन उस वक्त बहुत डिस्करेजिंग लगता था कि ऐसे कोई कैसे बोल सकता है। और कंफ्यूजन, डाउट कि सच में ऐसा तो नहीं है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, सच में ऐसा तो नहीं है कि लोग इस चीज का वैल्यू ना करें और फिर हम लोगों की जो अ, ये सारा मेहनत है, ये सारा कोशिश है, फेल हो जाए। तो लगा कि नहीं, करना चाहिए। डिसाइड किया कि करना चाहिए। इवन टू दैट डे जब हम लोग मशाल लाइब्रेरी का ओपनिंग कर रहे थे मुस्ताबाद में, तो द सेम डे मैं बहुत नर्वस हो गई थी, बहुत ज्यादा। थ्रू आउट ऑल दिस जर्नी माय ब्रदर दानिश वाज देयर। तो जब कुछ बुक्स जो थी हम लोग अपना घर से ही लेकर के जा रहे थे, जो हम लोग ने सारा अपना कॉलेज स्कूल टाइम से इकट्ठा किया हुआ था, तो मोर देन 200 बुक्स था हम लोगों के पास। और वही पहला जो बॉक्स था किताबों का, वो लाइब्रेरी में गया था। तो जब हम लोग वो पैक करके लेकर के जाया था, लाइक दानिश और मैं पूरा वो उसको, बुक्स को बॉक्स में शिफ्ट कर रहे थे। आई सेड, दानिश, इज इट पॉसिबल कि हम लोग अभी भी छोड़ दें इस चीज को? आई वॉज दिस नर्वस कि नहीं, फेल हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सी कन्विंस भी हम ही लोगों ने किया था, शुरुआत भी हम ही लोगों ने की थी। तो वो थोड़ा सा नर्वसनेस था कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, अगर वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, तो जो बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं, उनका जो भरोसा है वो खत्म हो जाएगा। आई वॉज 23 एट द टाइम। आई थिंक इट्स फाइन टू बी दैट नर्वस इन दैट एज। तो फिर ये हुआ कि दानिश, जो यूज्ड टू बी माय बिगेस्ट सपोर्ट until नाउ, he said कि अच्छा, अगर ऐसा होता तो बोल देना कि भाई ने किया था। बोल रहा है कि भाई ने किया था, बोल देना अगर फेल हो जाता है तो। आई वाज लाइक कि अरे ऐसे कैसे, सब जानते हैं कि आई हैड इनिशिएटेड दिस प्रोजेक्ट। तो बोलता है कि नहीं, तुम बोल देना अगर फेल हो जाए कि भाई ने किया था, इसलिए हम
हमने ये शुरू किया था। तो हालांकि ही वॉज नॉट सीरियस, बट इवन दो अगर सिचुएशन ऐसा होता तो ही वुड बी दैट मच सीरियस कि वो सारा जो क्रिटिसिज्म है, सारा जो ब्लेम है वो खुद पर ले लेता है। बट उसका वो स्टेटमेंट ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, लाइक कि हाँ ठीक है करते हैं। तो ये ओपनिंग डे वाले दिन की बात है। तो इस तरह से हम लोग लाइब्रेरी हम लोगों ने शुरू किया था। और जब मशाल लाइब्रेरी हम लोगों ने सेटअप किया, तो डॉक्टर अनवर हैं यहाँ मुस्ताबाद में। उन्होंने बहुत बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ज्यादा, एकदम फरिश्ता दिल जिसको बोलेंगे। और ड्यूरिंग द राइट, जब सारे ही हॉस्पिटल बंद थे, सारे छोटे छोटे क्लिनिक बंद थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा पुलिस केस उनके क्लिनिक के साथ या हॉस्पिटल के साथ हो कि सी नोबडी नोज कि कौन विक्टिम है और कौन राइटर है ड्यूरिंग दैट टाइम, जो इंजर्ड होकर के हॉस्पिटल या क्लिनिक आया हो। तो practically they were right, but I don't think morally it was right to close the clinic or hospital during the time जब आसपास के एरियाज में राइट हो रहा हो, लोग फिजिकली हार्म हो रहे हो, तो ऐसे में तो क्लिनिक और हॉस्पिटल का खुला होना बहुत जरूरी होता है। तो अ, यहाँ मुस्ताबाद में 3 ऐसे बड़े हॉस्पिटल हैं जो ट्रीट कर सकते थे एक बिग नंबर ऑफ उसको पेशेंट को। तो दोनों ही क्लोज थे, सिर्फ अल हिंद हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल था जो उस वक्त खुला हुआ था। और मोर देन 200 पेशेंट को उन्होंने उस 2 दिन में 25 और 26 फरवरी को ट्रीट किया है। और फिर उसके बाद उनका वो हॉस्पिटल भी रिलीफ कैंप में पूरा तब्दील हो गया था। तो डॉक्टर अनवर हैं जिनका वो हॉस्पिटल था, अल हिंद हॉस्पिटल, बहुत किया उन्होंने, बहुत सपोर्ट किया। अल्लाह का शुक्र है कि वो इतना कर पाए और इतना सपोर्ट कम्युनिटी को वो कर पाए अपने हॉस्पिटल के थ्रू। तो जब हम लोगों ने देखा कि पूरा इस तरह से उन्होंने एकदम बैकबोन की तरह कम्युनिटी को उस वक्त सपोर्ट किया था, तो हम लोगों ने रीच किया था मशाल लाइब्रेरी शुरू करने के लिए उनको ही, ये सोचकर कि वो समझेंगे हम लोगों के आइडिया को, क्या इनिशिएटिव है, हम लोग क्यों लेना चाहते हैं और इससे क्या चेंज आ सकता है। जब हम लोगों ने अप्रोच किया, लाइक कि अच्छा आपको लग रहा है हो जाएगा, जैसा आप चाह रही हैं वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, वो बेदारी, वो अवेयरनेस सोसाइटी में आएगी कि हाँ लाइब्रेरी जैसे प्रोजेक्ट का या सेटअप का इस्तेमाल वो करें। तो मैंने प्रेजेंट किया उनके सामने वो पूरा डेटा कि इतनी जो विमेन प्रोटेस्टर्स थी एनडीसी प्रोटेस्ट में, वो चाहती थी, ओवर 70 विमेन थे जो उस वक्त चाहती थी कि उनके बच्चों के लिए और उनके लिए ऐसा ऐसा सेटअप लाइब्रेरी का होना चाहिए जहां वो आ करके पढ़ सके, जहां से वो किताबें इशू करा सके बिना पैसे दिए, क्योंकि किताबें खरीद पाना लाइब्रेरी में का मेंबरशिप सब्सक्राइब कर पाना लग्जरी में काउंट होता है मुस्ताबाद के लिए। क्योंकि यहाँ पर 90% के 90% लोग जो है अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं। दोस्त 10% जो लोग हैं उन्हीं की बिल्डिंग्स में वो रेंट पर रहते हैं। एक एक बिल्डिंग में कोई 4 4 5 5 फैमिलीज जो है रेंट पर रहते हैं। तो एजुकेशन, लाइब्रेरी, किताबें, ये सारी चीजें अफोर्ड कर पाना लग्जरी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता यहाँ पर। तो डॉक्टर ने हम लोग को बहुत इनकरेज किया, हालांकि कुछ सख्त सवाल भी किए कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगी, या फिर इस तरह से कि अच्छा ठीक है आप कोशिश कीजिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप यहाँ पर लोग इतना ज़्यादा अवेयर हैं लाइब्रेरी या फिर एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को लेकर के। आई सेड कि डॉक्टर साहब यही हमको करना है, अगर हमने अवेयर ही कर दिया, अगर हमने ये इम्पोर्टेंस ही समझा दिया इस लाइब्रेरी के जरिए, बाकी तो काम लोग खुद कर ही लेंगे। कि यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अपने लिए, अपने हालात बदलने के लिए, आज ये जो तस्वीर है इंडियन मुस्लिम्स की यहाँ कंट्री में, उसको बदलने के लिए हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं जो नीड था वो हम लोगों के एजुकेशन हासिल करने से जुड़ा हुआ है। तो हमको मालूम है कि जब हम जैसे कुछ लोग के अंदर वो यकीन
कि हालात बदल सकते हैं, वो इस वजह से आया क्योंकि हम जो कुछ दो चार लोग थे वो समझते थे कि कितना ज़रूरी है ये एजुकेशन हासिल करना। तो अगर यही चीज़, यही इम्पोर्टेंस वो समझ जाएं, बाकी और लोग मुसावात के समझ जाएं, तो वो अपने लिए अलग अलग रास्ता खुद बना लेंगे। फिर हमको सबको पकड़ करके बताने की जरूरत नहीं है कि अच्छा आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। कि आप लोग जो है यूं करोड़ों रुपए शादियों में, यूं करोड़ों रुपए आप अपने छोटे छोटे फंक्शन में ना बर्बाद करके बच्चों की पढ़ाई पर लगाएं। क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिनके लिए जो पढ़ाई को, जो एजुकेशन को वैल्यू ना देते हुए बहुत सारा पैसा उन चीजों पर खर्च करते हैं जिसका अगले दिन कोई वैल्यू बचता ही नहीं है। हालांकि अच्छी बात है, अल्लाह ने जिसको जितना दिया है वो उतना अपने हिसाब से अपनी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन कंपैरिजन देख करके अफसोस होता है कि उन्हीं के घरों में बच्चे 8वीं 10वीं पढ़े हुए, उनको समझ नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, उनको समझ नहीं पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, उनको समझ नहीं है अगर हालात बिगड़ते हैं तो किस तरीके से खुद के लिए स्टैंड लेंगे, सिवाय इसके कि वो जो है पैसे आगे रख सके। तो इसलिए हमको चाहिए हमारी सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा एडवोकेट, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर, ज्यादा से ज्यादा वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्टली जुड़े हों। ऐसे लोगों की अभी जरूरत है। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, इंशाल्लाह वो अवेयरनेस भी लोगों में आ जाएगा। जब हम लोगों ने नींव रख दिया है, वो शुरुआत हम लोगों ने कर दी है, यहाँ तक हमारी जिम्मेदारी थी। इंशाल्लाह जब तक रहेगा कि हाँ हम लोग स्ट्रेंथ बचा रहेगा, इंशाल्लाह तब तक करेंगे। बाकी तो फिर जब पॉजिटिव नियत के साथ, जब सही नियत के साथ किसी काम की शुरुआत की जाती है तो उसका कामयाब करने वाला तो उसको अल्लाह है, ये हम लोगों का फेथ है। तो उसको कामयाबी देने वाला तो अल्लाह है। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा जैसा हम लोगों का जो इरादा हम लोगों का, इंशाल्लाह वो भी कामयाब होगा कि लोग जो है थोड़ा बेदार होंगे, बच्चे जो है वो अपना पढ़ाई को ड्रॉप नहीं करेंगे। ये हम लोग कोशिश करते रहते हैं, हम लोग बीच बीच में अपना लाइब्रेरी में काउंसलिंग सेशन भी करते रहते हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर सेशन करते रहते हैं। कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से लड़कियां, बच्चे, इवन लड़के पढ़ाई ड्रॉप कर देते हैं, स्कूल भी अपना कंप्लीट नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना लाइब्रेरी में, मशाल लाइब्रेरी में, अमाज लाइब्रेरी में वो काउंसलिंग सेशन बीच बीच में हम लोग करते रहते हैं। साथ में ट्यूशन क्लासेस वगैरह भी, जस्ट इन केस की अगर किसी को ज़रूरत है और वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी लाइब्रेरी में हम लोग टीचर्स वगैरह का भी कुछ लोग हैं जो वॉलंटियरली भी हम लोगों के साथ काम करते हैं लाइब्रेरी में और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसा हुआ कि फिर मशाल लाइब्रेरी हम लोगों का वहाँ पर अल हिंद हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर 2023 फरवरी में शुरू हुआ था और पूरा 1.5 साल वो वहीं रहा। 2024, हाँ। तो सॉरी 2024 का जनवरी था जब अनस भाई, अनस तनवीर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ अपना कनेक्शन, अपना अच्छा बातचीत था। क्योंकि ड्यूरिंग राइट भी उन्होंने लोगों के केस यहाँ से लड़े थे, रिप्रेजेंट किया था उनको कोर्ट में, जो फॉल्सली अरेस्ट किए गए थे। तो तब से उनके साथ हम लोगों का जो ताल्लुक था एक, तो वी इनवाइटेड हिम। 26 जनवरी का हम लोगों का प्रोग्राम था मशाल लाइब्रेरी में। वो आते हैं, बहुत सराहते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं कि अच्छा हम लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है। ऑल्दो आफ्टर ऑल दो रिस्क, कि चलेगा कि नहीं चलेगा, कि लोग कैसा रिस्पांस करेंगे। हालांकि काफी नेगेटिव रिस्पांस लोकल लोगों से भी हमको मिला था कि क्या करना है, क्या जरूरत है, लड़कियों को भेजने की क्या जरूरत है लाइब्रेरी, और स्कूल में पढ़ लेती हैं उतना काफी है। और वो एक एक कहावत है कि अच्छा पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं, वो गली के उसमें जो लाइट, स्ट्रीट लाइट के नीचे भी पढ़ लेते हैं। हम्म। तो ये सबके लिए फिट नहीं होता है, ये सबके लिए फिट नहीं होता है। ये सिर्फ वो जुनूनी लोग होते हैं जो सच में सिर्फ भूल चुके होते हैं कि दुनिया में कोई उनका सहारा बनेगा। ये वो जुनूनी लोग होते हैं जो 100 में 1 होते हैं। लेकिन बाकी 99 लोगों के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और आई थिंक ये बात क्योंकि भी है ना कि अगर
ठीक है, स्ट्रीट लाइट में भी लाइक हाँ जिनको पढ़ना है वो स्ट्रीट लाइट के अंडर भी हाँ पढ़ सकते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है हाँ कि स्ट्रीट लाइट ही बस रहे पढ़ने के लिए। मतलब अगर लाइब्रेरीज हाँ खुल रही हैं, अगर एक्सेस टू इस हाँ तरीके का रिसोर्सेज बन सकता है तो और अच्छी बात है हाँ ना। हाँ, तो हमको डेवलप करना चाहिए अपने एरिया को। क्यों हम अपने घर के बच्चे स्ट्रीट लाइट के नीचे भेजें? क्यों भेजें एग्जैक्टली। जब हम लोग कर सकते हैं? एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जहां उनको हम एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सके जहां वो सलीके से उठ बैठ करके पढ़ सके, एक डिग्निटी के साथ अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सके, बिना इस स्ट्रेस के कि अच्छा उस स्ट्रीट लाइट की लाइट जा सकती है। बहुत इलॉजिकल सा ये था वक्त जब हम लोगों को रिस्पॉन्स लोकल लोगों से जिनके लिए हमने किया था। हालांकि सबका नहीं था, वो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया, काफी लोग इस चीज के लिए थैंकफुल थे कि हाँ ये ऐसा इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया। दे यूज्ड टू बी लाइक कि नहीं आप इसको प्लीज बंद मत होने दीजिएगा। इवन स्टूडेंट्स बोलते थे कि बंद नहीं होने दीजिएगा, कि कई दफा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता है लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स वो बंद हो जाता है। तो यू लाइक कि नहीं बंद तो नहीं होगा। अब चाहे हमको कहीं से सपोर्ट मिले ना मिले, चाहे पॉकेट से पैसा जाए, चाहे हमको यहाँ पर अर्न करके लगाना पड़े, लेकिन ये चलेगा। तो थोड़ा नर्वसनेस रहता है कि अच्छा फिर हर मंथ का बजट कैसे कंप्लीट होगा। हालांकि वहाँ जब अपना लाइब्रेरी था लेन हॉस्पिटल में तो हमको रेंट नहीं पे करना होता था। डॉक्टर साहब ने हमको वॉलंटियरली वो स्पेस दिया हुआ था। मैं अभी जहां भी बात होती है उस लाइब्रेरी की, मैं हर जगह जिक्र करती हूँ कि छोटी बात नहीं है। एक प्रॉपर्टी जिसका रेंट 25,000 हो सकता है, उस प्रॉपर्टी को 1.5 साल तक आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है और आप वहां से अर्न कर सकते हैं प्रॉपरली, लेकिन आपने चुना है कि आपको नहीं करना। तो आज के टाइम पे जब कोई बिना किसी मतलब बिना किसी फायदे के कोई काम नहीं कर रहा होता है, ऐसे में दे पाना अपना प्रॉपर्टी फॉर फॉर दिस लॉन्ग पीरियड छोटी बात बिल्कुल नहीं है। तो मैं बहुत इस चीज के लिए थैंकफुल हूँ डॉक्टर साहब के कि उन्होंने सपोर्ट हम लोगों को किया उस दौर में जिस वक्त हम लोग खुद नर्वस थे कि हम लोग ये चीज सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर वो हम पर भरोसा नहीं करते तो आई थिंक यहाँ तक आ पाना, 2 लाइब्रेरीज का सेटअप हो पाना बहुत मुश्किल होता, बहुत ज्यादा। I'm also very curious to learn about Amma's library because you start with Mashal's library and then clearly यहाँ पे there is not just hope but also such exciting aspect of the community that there are two libraries now. जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंकफुली बहुत अच्छे लोग मुझे जिंदगी में मिले हैं जिन्होंने वक्त ब वक्त मेरा साथ दिया है और ट्रस्ट किया है इवन कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट में लीड कर सकूं। तो इट वाज 26 जनवरी जनवरी 2024 जब अनस भाई जो है आए थे हम लोगों का लाइब्रेरी में देखने के लिए कि कैसा हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और जब वो आते हैं वो देखते हैं, बहुत सराहते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं, बोलते हैं कि अच्छा तुम लोगों ने यहाँ पर रह करके मुर्शिदाबाद में रह करके इतना बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है। तो इस चीज के लिए काफी वो सराहते हैं, बोलते हैं कि हम लोग एक और लाइब्रेरी ऐसा शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सरप्राइज हुई बट आई वाज लाइक कि ओके ठीक है। लेकिन वहां से उस दिन जाने के बाद 26 जनवरी को जाने के बाद वो फिर बात करते हैं ऐसा फरवरी में, मिड फरवरी में वो कॉल करते हैं और मेरी बात कराते हैं संजय सर से। संजय हेगड़े सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। तो बात कराते हैं, बोलते हैं इंट्रो कराते हैं कि ये शबनम है और ये इस तरह से लाइब्रेरी रन कर रही है। सो मैंने उनको बोला था कि वी नीड हेल्प। हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है। इवन अपने पास टेबल लैंप नहीं थे, हम लोगों के पास पंखे कम थे लाइब्रेरी के अंदर। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजों की बड़ी जरूरत थी। लेकिन ये था कि हम लोगों के पास प्रॉपर एक फंड नहीं था। हम लोग हर महीने जो है लोगों को अप्रोच किया करते थे, बोला करते थे कि अच्छा ये सारी जरूरतें हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हम लोगों की लाइब्रेरी में। हालांकि वो हो नहीं पाता था इवन दो लाइब्रेरी को चलते हुए 1 साल हो गया था। तो जब अनस भाई संजय सर से बात कराते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग एक पूरा नया लाइब्रेरी सेटअप करना चाहते हैं। और सरप्राइज की इतना कॉन्फिडेंस वो मुझे दे रहे हैं कि हाँ मैं मशाल के अलावा एक और लाइब्रेरी संभाल सकती हूँ और हम लोग इंशाल्लाह इस पे काम कर सकते हैं। तो इट वॉज अबाउट रमजान का टाइम था मेरे ख्याल में, हाँ अप्रैल अप्रैल का टाइम था। और अप्रैल में रमजान था 2024 में।
तो संजय सर बोलते हैं कि हमको जो है रमजान में ही ओपनिंग करना है, और मुझे बस एक रास्ता चाहिए होता है कि अच्छा कोई बेहतर काम हम लोग कम्युनिटी के लिए कर सके। और मैं बिल्कुल भूल गई कि अच्छा रमजान है, और क्या महीना है, क्या हम लोगों के पास उतना टाइम हो पाएगा नहीं, क्योंकि बाज दफा रमजान में उतना वक्त नहीं होता है लोगों के पास, वो सहरी और इफ्तार के बीच का टाइम, एनर्जी का कम होना, आपकी नींद का कम होना, फिर आपकी इबादत का जरूरी होना, वो सब आप स्किप नहीं कर सकते, इबादत आप स्किप नहीं कर सकते। तो हम वी लाइक कि करते हैं, मैनेज करते हैं थोड़ा सा और ढूंढ लेंगे स्पेस। तो हमको ओपनिंग रमजान में ही करना था, तो इसलिए हम लोग आप आस पास के लोकल एरियाज में हीट कितना ज्यादा हो जाता है अप्रैल में, उसके बावजूद मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, मैंने कहा नहीं हमको करना है, करते हैं, अगर कोई इस तरीके से आ रहा है साथ देने के लिए तो हमको उसको खोना नहीं है। मेन चीज ये था उस वक्त, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे लाइब्रेरी को रन करने के लिए, और एक प्रॉपर नया लाइब्रेरी अगर खुल सकता है उसके लिए हम लोगों को सपोर्ट मिल सकता है फाइनेंशियली। तो मेरा ये था कि हमको जाने नहीं देना है किसी भी हाल। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होगा अभी इस महीने, रमजान के महीने में ढूंढ पाना कोई ऐसा स्पेस, लेकिन हम लोग कर लेंगे, करते हैं। शुरू किया हम लोगों ने, इतना हीट में रोजा रख करके हम लोग गली 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 भटकते थे कि अच्छा कोई स्पेस मिल जाए, कोई हॉल मिल जाए लाइब्रेरी खोलने के लिए। हालांकि मिला नहीं, और अनफॉर्चुनेटली ईद भी आ गई। अरे मतलब अल्लाह का शुक्र है ईद आए, बट जो हम लोगों का वो टारगेट था वो पूरा नहीं हो गया। हाँ। हाँ। हाँ, तो वो जो टारगेट था रमजान में ही लाइब्रेरी खोलने का, वो पूरा नहीं हो पाया। तो और फिर अगेन फिर मई का वो पूरा अप्रैल मई पूरा ये टाइम बहुत हीट का इशू था उस दौरान भी। तो कर लिया, हालांकि पूरा 1.5-2 महीना हमको लगा वो लाइब्रेरी का स्पेस ढूंढने के लिए, करंटली जहाँ पर है चांदबाग में अमाज लाइब्रेरी। तो वो स्पेस ढूंढने में हमको पूरा 1.5-2 महीने का टाइम लगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मिल गया। अभी वो मिल तो गया था, लेकिन उसमें पूरा वो पेंट का काम और डैमेज था प्रॉपर्टी उससे पहले, क्योंकि वहां पर फैक्ट्री चलती थी। वो लैंडलॉर्ड भी हमको जब उनको पता चला कि हम लाइब्रेरी चलाने वाले हैं और प्रॉपर कम्युनिटी लाइब्रेरी रहेगा, वी वोंट चार्ज अ फीस फॉर दैट। तो बोलते हैं कि आपको एग्रीमेंट कराना है कि नहीं कराना है इसके लिए। उनका हमको कराना है, हमको अपना जैसे नॉर्मली चलता है 11 मंथ का हमको वो करवाना है। तो बोलते हैं आप उससे पहले तो नहीं खाली कर देंगे स्पेस। मैंने कहा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे आगे भी कंटिन्यू। बोलते कि नहीं लगता नहीं ना कि आपका प्रोजेक्ट आगे चल पाएगा। तो वो उन्होंने कुछ ऐसा हमको डिमीन करने के लिए नहीं कहा था, ही वॉज सीरियसली कंसर्न कि ऐसा चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो हम लोग लगा कि नहीं ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग करते हैं, इंशाल्लाह चल जाएगा यहाँ पर। क्योंकि मशाल लाइब्रेरी के लिए सेम लोगों के रिव्यूज थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये था कि मशाल लाइब्रेरी में भी हम लोगों के ओवर 200 एडमिशन्स थे उस छोटे से स्पेस में, जहाँ पर हम वाओ। लोग 30 या। मोर देन 25 सिटिंग हम लोगों ने प्रोवाइड कराया था। लेकिन उस 25 सिटिंग में मशाल लाइब्रेरी के अंदर 200 से ज्यादा एडमिशन्स वो थे जो स्टूडेंट्स आ करके पढ़ा करते थे, अच्छा टाइम दिया करते थे, इवन स्कूल से हो या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, लेकिन दे यूज टू स्पेंड टाइम पूरा प्रॉपर, जैसा एक कमिटेड स्टूडेंट अपना टाइम को अपना स्टडीज से कनेक्ट करके चलते हैं। तो वो देख करके वो हम लोग का अचीवमेंट था। सी, वो प्रेशर नहीं हम देते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि अच्छा अब अगर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया तो यू विल हैव टू क्रैक दैट एग्जाम, एल्स यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगा, वैसा नहीं होता है। क्योंकि थ्री इडियट तो हम लोगों ने भी देखा है ना, प्रेशर हम लोग कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। हालांकि बस ये है कि उनको वो कंटिन्यू रखें उस स्पिरिट को, उसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम काउंसलिंग सेशन करते रहते हैं कि उनका वो लो ना हो, मोरल लो ना हो, उनका वो इंस्पिरेशन ना खो जाए किसी पोजीशंस को पाने का, किसी एग्जाम को क्रैक करने का, वो जो उनका इंस्पिरेशन है वो खत्म ना हो जाए। तो उसके लिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इवन 1 by 1 भी सेशंस करते रहते हैं लाइब्रेरी में, जस्ट इन केस कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी गोइंग थ्रू सम मेंटल स्ट्रेस। तो अमाज लाइब्रेरी हम लोग की अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई, और मई 22 था वो, 22 मई 2024। और इस कदर हीट का इशू था कि पलके तक ऐसा महसूस होता था जैसे जल रही हूँ। तो लाइब्रेरी जो था हम लोग का फर्स्ट फ्लोर पे था। मैं बार बार हीट का इस मसला इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बताना आपको चाह रही हूँ कि लाइब्रेरी हम लोग का फर्स्ट फ्लोर पे था, एंड आई वाज सो नर्वस कि
शुरू तो कर लिया है, लेकिन हीट के इशू की वजह से कहीं प्रोजेक्ट फेल ना हो जाए। लेकिन ये मेरे ख्याल में सिर्फ मुझे लगा, बिकॉज इस टाइम पर अल्लाह का शुक्र यह है कि हम लोग सोशली फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग है दैट वी कैन अफोर्ड एसी इन आवर होम। ठीक, तो हम लोगों के लिए लगता है कि नहीं हो नहीं पाएगा, ये ज्यादा हीट है, यहाँ पर लोग पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन वो मई का टाइम था, मई एंड होते होते हम लोगों के पास 50 से ज्यादा एडमिशन्स थे लाइब्रेरी में। हालांकि हम लोग कुछ ऐसा स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए हर रूम्स में एसी का, जो कि पॉसिबल नहीं था एक चैरिटेबल लाइब्रेरी के लिए। बट आई एम टेलिंग यू द नीड, कि गर्मी है, हीट है, लेकिन स्टूडेंट्स को पढ़ने का स्पेस मिल गया, वो आ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। ये जरूरत है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो देख नहीं रहे हैं कि किस कदर सफोकेशन उस स्पेस में हो सकता है। लेकिन उनको ये है कि अच्छा, एक स्पेस, प्राइवेट स्पेस, जहाँ पर थोड़ा प्राइवेसी मिल जाएगा, जहाँ पर पीस मिल जाएगा, जहाँ पर बुक, किताबें, वाईफाई वगैरह मिल जाएगा, तो दे वांट टू गेट इन। आई थिंक वो ये दैट हाँ ऑल्सो शोज के यू हाँ नो शबनम, जो तुमने पहले बात कही कि हाँ सम पीपल वर आस्किंग के जरूरत क्या है लाइब्रेरी की। हाँ हाँ आई थिंक दैट willingness जो students ने दिखाई, that they हाँ want to come and हाँ study and they want to spend time and हाँ वो सारा questioning एक तरीके से खत्म हो गया, right? कि हाँ जरूरत, बिल्कुल। the moment there is a space, people will come to हाँ educate themselves, to learn, to grow, and that is a very big resounding success of your बिल्कुल। of your जी commitment. Yeah. जी। तो डजेंट मैटर कि हम लोग हम लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग प्राइवेट लाइब्रेरी जैसा वो पूरा स्पेस प्रोवाइड कर सके, बट वी कांट compete with private libraries because we don't have ACs in our study room। तो हम वो कर भी नहीं सकते, एक चैरिटेबल लाइब्रेरी होने की वजह से वी डोंट हैव एवरीथिंग और परफेक्शन दैट अदर लाइब्रेरीज, प्राइवेट लाइब्रेरीज हैं। लेकिन स्टिल वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह दिस मच स्पेस की स्टूडेंट्स आ करके अपना किताबें, बिना उनको किताबों का टेंशन नहीं लेना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी में हर महीने एक नोटिफिकेशन डाल देते हैं, इफ एनीवन नीड्स कोई किताब तो हमको मेल कर दे, वी विल ऑर्डर। और हम लोग चेक कर लेंगे अपने सर्कल में कि किसी के पास एक्स्ट्रा वैसी किताबें हों जो डोनेट करना चाहते हो। ये हर महीने हम लोग करते हैं। और ऐसा फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ हम लोगों के पास पाँच छः किताबों का रिक्वेस्ट आ जाता है, तो हम लोग वो अरेंज करा देते हैं। तो अपने यहाँ जो लाइब्रेरी में स्टूडेंट आते हैं, उनको ना वाईफाई का टेंशन लेना है, ना किताबों का टेंशन लेना है कि उनके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए किताबों की जरूरत पड़ी तो उनको बाहर से खरीदना पड़ेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू कि किताबें खरीद पाना लग्जरी में काउंट होता है, बहुत महंगी किताबें होती हैं। यूज टू बी स्टूडेंट, तो हम लोगों को मालूम है कि हम लोग कैसे सेकंड हैंड किताबें ढूंढा करते थे कि मिल जाए, क्योंकि फर्स्ट हैंड ओवर बजट हो जाती थी। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि किताबों की भी अगर ज़रूरत स्टूडेंट को हो तो उनको बाहर परेशान ना होना पड़े, या फिर वो दिक्कतें ना झेलनी पड़े जो एक टाइम पे हम लोगों ने झेली थी। मैंने एक कोट पढ़ा था, वो कोट कुछ इस तरह से था कि आप वो इंसान बने जो आप चाहते थे कि आपको कोई सा इंसान मिल सकता है जो आपको सपोर्ट कर पाता। मैं वर्ड टू वर्ड नहीं बता पा रही हूँ। कहना मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग जैसा खुद के लिए चाहते हैं, अगर हमको वैसा कोई सपोर्ट या वैसा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिल पाता, तो आई थिंक वी शुड बी दैट हेल्पिंग हैंड फॉर अदर्स। शबनम, तो मुझे एक कहानी, जैसे तुमने जो कोट सुनाया वैसे मुझे एक कहानी याद आ रही है, दैट आई डोंट नो इज इट इन सम पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्चर या कहीं के, एक इंसान था जो अल्लाह में बहुत यकीन रखता था, एंड एक बार वो कहीं था, किसी जहाज में था, नाव में था, कहाँ था, एंड वो डूबने लगी नाव, एंड वो भी डूबने लगा। तो उसको इतना यकीन था कि उसने खुदा पे, कि उसने कहा कि गॉड विल सेव मी। एंड देन एक था, साथ में एक आदमी चला आ रहा था किसी नाव में, और उसने अपना हाथ दिया उसको और कहा कि आ जाओ, लाइक तुम डूब रहे हो, एंड ही इज लाइक नहीं नहीं, आई एम वेटिंग फॉर अल्लाह मियां टू सेव मी। एंड आई थिंक ये कहानी आती है कि एक दो बार वो इंसान आया बचाने के लिए, एंड इनफेक्टिवली उसने उसकी मदद नहीं ली, और फिर वो इंसान दूसरा जो डूब रहा था वो डूब गया। एंड वो कहानी ये है कि जब वो गया टू हेवन एंड ऑल, एंड उसने पूछा कि मुझे जरूरत थी, बट यू डिडंट अपीयर, एंड आई थिंक गॉड सेड दैट आई अपीयर्ड थ्राइस,
मैं 3 बार आया and you didn't take my help. And I think that's sort of like a lesson which I'm taking from your story. कि तुम, what you have done is acted as that kind of a support for the students and the youngsters वहाँ पे, जो जो जरूरत उन्हें है, तुम उसका जरिया बन रही हो उनके लिए. The library is the जरिया. And अल्हम्दुलिल्लाह। that is out. I mean, I don't have words. I think that's just मरियम, अगर 5 साल पहले 7 साल पहले अगर कोई बात मुझे बोलता, जब मैं अपने कॉलेज डेज में थी, पीपल यूज टू नो, इवन माय फ्रेंड यूज टू नो कि मैं बहुत शाई, बहुत ज्यादा शाई, मैं अपनी बात कह नहीं पाती थी, मैं लोगों से बात नहीं कर पाती थी, दोस्ती नहीं कर पाती थी। तो ऐसा पब्लिक स्पेस पर आकर के पूरा कम्युनिटी को एंगेज कर पाना उस दौर के लिए तो नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था। इवन आज के लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है मेरे लिए। लेकिन मैं जानती हूँ दैट आई एम नो स्पेशल, लाइक ऐसा कुछ स्पेशल मैंने नहीं किया। आई वाज लाइक जस्ट एक कोशिश थी जिसको अल्लाह ने, बाकी और बहुत सारे अच्छे लोगों ने सपोर्ट किया, वरना देयर वाज नथिंग डिफरेंट इन मी। लाइक किसी होता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत ज्यादा हुनरमंद, बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल होते हैं जो कर रहे होते हैं। आई नो मी, आई एम जस्ट एन एवरेज गर्ल लाइक अदर्स। मैं काफी डरती हूँ चीजों से, मैं काफी ज्यादा घबराती हूँ लोगों से बात करने से पहले और कोई इनिशिएटिव लेने से पहले। लेकिन आई नो आई हैव सच गुड पीपल माई साइड, और अल्लाह इज ऑन माई साइड। सो रास्ते बन जाते हैं, yeah. रास्ते अल्लाह का शुक्र है कि बन जाते हैं। जस्ट लाइक मेरा जो मशाल लाइब्रेरी था वो बंद हो गया था बिकॉज जो हॉस्पिटल था वो कंस्ट्रक्शन में चला गया था। लास्ट ये अगस्त की बात है, जब हम लोगों के पास कॉल आया डॉक्टर साहब का, बोले कि शबनम, हमको जो है हॉस्पिटल हम लोग स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमको ये था कि हमको लाइब्रेरी वहाँ से शिफ्ट करना है, और जिस लाइब्रेरी के लिए हमको पैसा ही नहीं मिल रहा है तो उस लाइब्रेरी को लेकर के हम जाएंगे कहाँ। क्योंकि मशाल लाइब्रेरी बस इसी तरीके से चलता था कि अगर कॉन्टैक्ट में कुछ लोगों ने किताबें भेज दी तो हो गया, किसी ने वाईफाई का 1 महीने का भेज दिया तो हो गया, और या मतलब सिंपली ऐसे। इवन हम लोग के पास मेड भी नहीं थी, तो आपस में ही वॉलंटियर्स सब कर लिया करते थे साफ सफाई लाइब्रेरी का। तो कम्प्लीटली वो जो लाइब्रेरी था वो सिर्फ डॉक्टर साहब के सपोर्ट पे था, और जब डॉक्टर साहब ही पीछे उस वक्त हटे तो वो लाइब्रेरी जो है, टेबल बहुत लंबी टेबल थी वो, ऐसा कि एक टेबल पे आराम से 10 लोग बैठ जाते थे, तो हमको वो टेबल कटवानी पड़ी बीच से ताकि हम उसको उठा सके वहां से। देयर वाज अ टाइम आई हैव फोटोज एंड वीडियोज ऑफ दैट डे। आई वाज क्राइंग लिटरली कि ये क्या हो गया है, ये टेबल्स हमको बीच से कटवानी पड़ेंगी, तोड़नी पड़ेंगी, यहाँ से हटाने के लिए तो सोचा ही नहीं था। तो इट वाज दैट टाइम जब आई वाज फीलिंग सो लो और सो डिस्ट्रेस कि अभी ये लाइब्रेरी बंद हो रहा है तो ये खुल नहीं पाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि खुल ना पाए। और ये अमाज लाइब्रेरी को ओपन किए हुए कोई 2 महीना हुआ था हम लोगों को। तो अब वो लाइब्रेरी तो चांदबाग में खुल गया, लेकिन मशाल लाइब्रेरी पीछे से बंद हो गया। those 2 months we tried to reach out everyone, जिसका भी हम लोग वो दरवाजा खटखटा सकते थे कि थोड़ा बहुत सपोर्ट के लिए, इवन सिर्फ रेंट के सपोर्ट के लिए लाइब्रेरी के, कि लाइब्रेरी जो है चलती रहे। तो काफी कोशिशों के बाद थैंकफुली मुझे ये सोशल मीडिया पे कोई फंडरेजर डालने की जरूरत नहीं पड़ी। कांटेक्ट में ही कुछ अच्छे बहुत प्यारे लोग थे, तो मैंने उनको भी रीच किया था, जो लाइक कि हम बताते हैं आपको 2-3 दिन में। वो 2-3 दिन कंप्लीट होने से पहले उन्होंने, जिस दिन मैंने उनको बोला था उस दिन उन्होंने शाम में मुझे मैसेज किया कि आप देख लीजिए, हम लोग अरेंज कर लेंगे रेंट। मैं वाज सो हैप्पी कि ये हो गया, इतना इजीली हो गया। मैं इतना स्ट्रेस कर रही थी, मैं अलग अलग लोगों से मिल रही थी, हालांकि हाँ इट टुक सम 1.5 मंथ कि मैंने उनको रीच किया। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं होता कि आप अचानक से वो सही दरवाजे पर पहुंच पाए। सही दरवाजे पर पहुंचने से पहले आपको और बहुत सारे खाली या गलत दरवाजे कह लें, उनको खटखटाना जरूरी पड़ता है। आपको नहीं मालूम होता है कि कौन से वाला दरवाजा सही है। जस्ट लाइक दैट, अगर मैं पहले उनको रीच करती तो शायद वो लाइब्रेरी, मेरा मशाल लाइब्रेरी बंद भी ना होता। लेकिन हाउ वुड आई नो कि कौन है जो सपोर्ट करेगा। उसके लिए जरूरी था कि सबसे पूछना। वो सबसे पूछने में, सबको कॉल करने में, सबसे मिलने में 1.5 महीना लग गया मुझे टू रीच दैट पर्टिकुलर डोनर जो अब मशाल लाइब्रेरी को सपोर्ट कर रहे हैं।
तो So हम now लोगों you ने are managing two libraries basically. हाँ हाँ हाँ, तो अपना मशाल Okay. लाइब्रेरी मुस्तफा से शिफ्ट होकर के अब खजूरी में चला गया, विच इज ऑल्सो स्लम एरिया। You know, जी मुझे तुम्हारी कॉन्वर्जेशन से क्रांति कलेक्टिव की ध्यान भी आ रहा है, बिकॉज आई डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर विद द लाइब्रेरी एंड द कम्युनिटी सेंटर. सो वो पालम विलेज में है, एंड आई थिंक इट हैज बीन स्टार्टेड. I think Bhumika Saraswati, the journalist, she started this. And मैं उसका एक पॉडकास्ट सुन रही थी भूमिका का, in which she said this very important thing, that the reason why she started that library and that community center initiative in Palam is because she wants to have people come from like जरूरत जहाँ पे है वहाँ पे हो लाइब्रेरी, या वहाँ पे हो वो बिल्कुल सेंटर. Because सबके लिए इतना आसान नहीं है to go to like a more central area, and have access to books and have access to resources to study and learn. Um, and I think you've done actually something exactly the same, that you are addressing the need of the community, of the youngsters from that community, ताकि उनके लिए वो एक इम्पेडिमेंट कम हो जाए कि कहीं जाके दूर you will have access. So you've also ensured कि it is closer, it is for the people that uh, are the most beneficiaries from this kind of initiative. शबनम, तुम जब ये बता रही थी मुझे मशाल लाइब्रेरी के बारे में, आई एम क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि जिन whether it's the young women or the girls who were struggling to find a place to study, because चाहे whether it's about the fact कि औरतों के लिए they wanted a separate space, या फिर families might be like कि पढ़ लिख के क्या करेंगी, that kind of questioning. Have the attitudes changed of the families from where these girls come from, और या ऐसा भी हुआ है कि उनको देखकर और लड़कियों ने लाइब्रेरी को एक्सेस करना शुरू किया है? ऑब्वियसली इवन मैंने रिसेंटली पोस्ट भी किया था अबाउट द वो अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम जो हम लोग अमाज लाइब्रेरी और मशाल लाइब्रेरी में कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो औरतें जो पढ़ाई नहीं की हुई है, जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, जो अब चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई भी शुरू करें, तो हम लोग उनको वो मौका यहाँ अपनी लाइब्रेरी में देते हैं। और जब हम लोगों ने शुरू किया था 6 महीने पहले ये प्रोग्राम, तो सिर्फ 5 औरतों को हम लोग अराउंड 30 वुमेन्स में से कन्विंस कर पाए थे। हम लोग मिले थे घर से घर जाकर के लोगों से और बोला था कि ऐसा इस तरीके से हो रहा है, अपनी बेटी को भी भेजें और अपनी मतलब औरतें भी आए शामिल हो इसमें, क्योंकि कोई उम्र नहीं होती सीखने की पढ़ने की, और डिपेंडेंसी खत्म तो किसी भी उम्र में जरूरी है कि खत्म हो, कि आपको डिपेंड ना होना पड़े छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए, पूछने के लिए या जानने के लिए। तो हम लोग बस 5 औरतों को कन्विंस कर पाए थे उस वक्त, 6 महीने पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो वो 5 औरतें शामिल हुई, अपने लिए वो भी बहुत बड़ा सक्सेस था कि एक ऐसा सोसाइटी में से जहाँ पर लोगों को ये लग रहा है कि अब जरूरत नहीं है पढ़ने की, या लड़कियों को भी क्या जरूरत है पढ़ने की, वहां से लड़कियों के साथ साथ औरतों को भी शामिल कर पाना, बताने के लिए कि हाँ आप अब भी शुरू कर सकती हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उसकी जानकारी आप भी ले सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपके घर के आदमी, आपके घर के मर्द ही दुनिया में चलने वाली चीजें, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कुछ भी ऐसा करंट जिंदगी का हिस्सा हो जो इसके लिए पढ़ाई की लिखाई की जरूरत पड़ सकती है, वो जरूरी है सबके लिए। तो वो 5 औरतें मेरे साथ जुड़ी उस वक्त लाइब्रेरी में, और उन्होंने कंटिन्यू किया नेक्स्ट 6 महीने तक। अभी हम लोग जब वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मिले तो मैंने बुलाया था उनको, और जब वो शामिल हुई थी, वो अंगूठे से मतलब वो थंब इम्प्रेशन किया करती थी जहाँ उनको साइन की जरूरत पड़ती थी। आज वो अपना साइन भी करती हैं, आज वो पढ़ती भी है, न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती है। इसी 6 महीने में यूजुअली जब बच्चा होता है, नया बच्चा होता है, स्कूल जाता है, तो वो इतना ग्रोथ नहीं कर पाता, लेकिन ये औरतें हैं, ये जानती हैं कि इनको इनके पास इतना समय नहीं है कि वो गवा सके, नजरअंदाज कर सके। तो वो जिस ध्यान के साथ उन्होंने पढ़ा इस 6 महीने में, वो लफ्ज नहीं पहचानती थी, और अब वो किताबें बैठ करके लाइब्रेरी में पढ़ती हैं। इन 5 औरतों ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, जब हम लोगों ने ओवर 60 वुमेन्स को होस्ट किया था दावत इफ्तार के लिए, इन 5 औरतों ने 20 औरतों को कन्विंस किया।
इमेजिन, मैं जो आपको दैट्स बताने की कोशिश इनक्रेडिबल। कर रही हूँ कि या। मैंने सिर्फ 5 को हम्म। कन्विंस किया था, इन 5 ने 20 को कन्विंस किया है। अब वो 20 औरतें ना सिर्फ खुद शामिल हो रही है, बल्कि उनके घर से लड़कियां भी आ रही है। हम यंग जनरेशन को समझा सकते हैं, लेकिन जो ओल्डर जनरेशन है उनको समझाना बहुत मुश्किल है। अगर वो समझ जाएंगी तो उनकी वजह से उनके बच्चे वो खुद फोर्स करके, इवन अगर उनके बच्चे शायद ना समझे में पढ़ाई से पीछे हट जाएं, या फिर ऐसा कुछ इनिशिएटिव अपने लिए लेने से पहले पीछे हट जाएं कि नहीं उनको कुछ पढ़ना है या कुछ सच में ही प्रोडक्टिव करना है लाइफ में, अगर वो उससे पीछे हटने लगे, तो अगर औरतें ही समझ जाएंगी कि कितना बड़ा वैल्यू है एजुकेशन का, या सी फोकस्ड रहने का, तो उनके बच्चे तो करेंगे ही करेंगे ना, क्योंकि औरतें पढ़ जाती है तो जनरेशन पढ़ जाती है, हम्म। एक पूरी नस्ल पढ़ जाती है। तो वी वर लाइक दिस, हम लोगों ने स्टार्ट किया था अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, क्योंकि लड़कियों को हम समझा ले रहे थे, लड़कियां शामिल भी हो रही थी लाइब्रेरी में आकर के, अपना अच्छा 6 घंटे से 8 घंटा टाइम भी दे रही थी। लेकिन ये चीज हम लोगों ने नोटिस किया था कि अक्सर जो है नंबर जो है कम रहता था इन कंपैरिजन टू बॉयज। तो लगा कि इसके लिए जरूरी है कि हम लोग पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए फादर को हम लोग कोशिश हम लोगों ने किया, लेकिन नहीं कर पाए उन बच्चियों की फादर्स को इन्वॉल्व, क्योंकि सारे ही लोग जो है लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं। सारे लोग अपना काम और सारी चीजों में बिजी रह करके उनके पास इतना समय ही नहीं बचता कि वो लाइब्रेरी जैसे किसी स्पेस पर आकर के कुछ बातचीत कर पाए। तो हमने अप्रोच किया उनकी मदर्स को, और उसके लिए बहाना बना अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, कि वो आए, कि वो सीखे, वो जाने, ताकि वो अपनी बच्चियों को वो आजादी दे सकें कि वो अपना टाइम लाइब्रेरी में बिना किसी प्रेशर के स्पेंड कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका असर दिखा हम लोगों को। ना सिर्फ औरतों का नंबर बढ़ा लाइब्रेरी में, बल्कि लड़कियों का भी नंबर और टाइम जो वो लाइब्रेरी में स्पेंड करती थी वो इंक्रीज हो गया है। और मैं लास्ट 1 हफ्ते का आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो 5 औरतें भले से उतना बड़ा चेंज उस 6 महीने में नहीं कर पाए, लेकिन ये लास्ट 7 मार्च को जो हम लोगों ने दावा किया था, उसके बाद जो एडमिशन हम लोग पास आए औरतों के साथ साथ उनकी बच्चियां भी आने लगे, कि बोल करके कि अम्मी आई थी 7 मार्च को, तो अम्मी ने बोला था यहाँ आकर के एडमिशन कराने के लिए। और हम लोग लिटरली पिछले 2-3 दिन से एकदम सरप्राइज सरप्राइज सारे घूम रहे हैं कि न्यू एडमिशन्स, और मोस्टली लड़कियों के। तो इट्स काइंड ऑफ अ सक्सेस फॉर अस, या आई कि मीन हम लोग वो इट्स। जो एक आइडिया, एक वो स्ट्रॉन्ग एक क्लोज आइडिया था, उसको हम लोग तोड़ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, लड़कियां पढ़ने के लिए बाहर टाइम स्पेंड कर सकती हैं। लाइब्रेरी के लिए घरों से लड़कियां स्कूल के लिए जा रहे हैं, अभी तक ये जस्टिफाइड है मिडिल क्लास में। लड़कियां ट्यूशन के लिए जा रही है, ये भी जस्टिफाइड है। कॉलेज के लिए जा रही है, जस्टिफाइड है। लेकिन लाइब्रेरी में जाना, पढ़ना, जहाँ पर आपको कोई ऐसा बाउंड्री नहीं है, या ऐसा बहुत जरूरी नहीं है कि आपको लाइब्रेरी जाएंगे तो आपको कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री मिलेगा। होता है ना कि जरूरी है कि नहीं है, वो जरूरत हम्म। अपनी सोसाइटी में महसूस नहीं की जाती है, कि ये जो फैसिलिटी है लड़कियों के लिए भी जरूरी हो सकती है। लाइब्रेरी जैसा स्पेस लड़कियों के लिए भी जरूरी हो सकता है। ये समझा पाना अपने लोगों को बहुत मुश्किल टास्क है। उनका कहना है कि क्या जरूरत है, घर में पढ़ लेंगे। घर में तो हम्म। पढ़ा ही नहीं जाता ना, घर में तो चाय का कप धो दो, चाय बना दो, बर्तन धो दो, झाड़ू लगा दो, ये सारी चीज में टाइम निकल जाता है। कहाँ से पढ़ेगा कोई? ये बहुत बेसिक सी चीज है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अच्छा जेंडर बायस और समथिंग समथिंग, वो एकदम अलग ही डिस्कशन, अलग ही बहस हो जाएगा। लेकिन जो करंट का सिचुएशन है वो ये है कि बच्चियां हों, उनको पढ़ने के लिए टाइम घर पर मिल पाना सेपरेट मुश्किल होता है जब लोग हों तो। ऑब्वियसली अपनी माओ को सपोर्ट और कौन करेंगे जब लड़कियां नहीं करेंगी तो। लेकिन फिर उनका टाइम का क्या, ये समझा पाना माओ के को जरूरी था। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आई थिंक बहुत बड़े लेवल पे नहीं तो एक छोटे सर्कल में, उस छोटे सर्कल में मैं बता दूं आपको 60 औरतें थी, हम लोग समझा पाए, कि हम लोगों के लिए एक कामयाबी का सबब है, या एक अचीवमेंट है बोल सकते हैं। अचीवमेंट तो है शबनम। मतलब मैं ये फील कर सकती हूँ कि अम, आप जो एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बाद जब आप उस एक्सपीरियंस को के जरिए अपनी बच्चियों को या अपने अपने घर की लड़कियों औरतों को इंस्पायर कर सकते हैं कि चलो लाइब्रेरी पढ़ के आते हैं, तो दैट चेंजेस द माइंडसेट। मतलब वो नजरिया बदलने वाली बात हो जाती है फिर, कि आप लाइब्रेरी को होलिस्टिकली देखते हैं। ये कोई एक वो चीज नहीं है जो थोड़ा एक्स्ट्रा हो रही है कि अरे क्यों जा रहे हैं। और अगर आपको वहां पे जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो आपको टाइम अपने लिए खुद के लिए मिल रहा है, जहाँ पे जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, जो आप लिखना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं,
उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है। क्योंकि शबनम, आई थिंक ये चीज तो हम लोग, आई थिंक कितना ही लंबा डिस्कशन कर लें, बार बार ये आती है कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, लाइक खुद का टाइम होना इज सो प्रेशियस। लाइक हम लोग को शायद, हम जब, हमारे लिए कभी वो एस्पेक्ट ऑफ हैविंग योर ओन टाइम वाली चीज इतना आसान नहीं होता है समझना, जब तक हम उसको एक्सपीरियंस ना करें कि भाई अब अपने वक्त में क्या करते हैं। मैं अपने वक्त, अपना टाइम के साथ किताब पढ़ के कुछ नया समझती हूँ, किसी भी चीज के बारे में। लेकिन लाइक यू सेड कि अगर घर पे हैं तो उस वक्त में बहुत सारी चीजें एक्सपेक्टेड हैं आपसे। हो सकता है कि घर के काम ना हो तो कुछ और हो। केयर गिविंग भी बहुत बड़ी चीज होती है जो आ, मामूलन औरतों के ऊपर होती है, वेदर इट्स एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, या जो भी, एज अ डॉटर, यू नो तो I think what you have done and how you and your volunteer network has achieved this is incredible, and I can only wish that this only grows and this only expands more and more. Like तुम्हारे लिए what is the idea, like what is the hope for all the people that are coming to the library, accessing the resources? What are your hopes from the libraries um, going forward? शुरू से जब मैंने कोशिश करना शुरू किया था 2022 से, इवन 20 से, जब मुझे रियलाइज हुआ था कि जिंदगी सिर्फ मेरी अपनी तो नहीं चल रही, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे, कॉलेज एंड होने के बाद अपना ये था कि अच्छा, एक एक डिसेंट सैलरी वाला जॉब करेंगे, एक गाड़ी चाहिए, एक घर चाहिए, और हो गया। एक पर्टिकुलर सा वो होता है, ड्रीम होता है कि हमको अपना 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 एक घरवंदा बनाना है। तो वो था। अब ये हुआ कि जब मैं प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि जिंदगी सिर्फ अपना कमाना खाने से बहुत आगे है, बहुत आगे। आप सोसाइटी का पार्ट है, आप सोसाइटी का पार्ट है। आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं सोसाइटी को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप नेगेटिव कुछ अ, दे रहे हैं, कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। और सिर्फ क्योंकि देर वॉज अ टाइम जब आई वॉन्टेड समवन टू रीच आउट टू मी, टू हेल्प मी, टू गाइड मी कि कौन सा रास्ता सही है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। फैमिली जो है वो बिजनेस बैकग्राउंड से है, और नहीं था उतना समझ कि क्या कौन सा फील्ड सही हो सकता है अपने लिए, या क्या सूटेबल मेरे लिए हो सकता है, कौन सा करियर मेरे लिए सूटेबल हो सकता है। वो पूरा जो कंफ्यूजन का दौर था, आई फेल्ट कि देयर शुड बी समवन जो गाइड कर पाता कि कौन सा फील्ड मेरे लिए सही होगा, कौन सा स्ट्रीम मेरे लिए सही होगा। या जब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, या जब मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, तो एक वो होता है ना, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, कि मैं किसी से डिस्कस कर पाऊँ, कि कोई मुझे जज ना करे। आई फेल्ट दैट कि जो मुझे चाहिए था और जो मुझे नहीं मिला, लेकिन आई एम ऑन दैट पोजिशन कि अभी मैं कर सकती हूँ बाकी लोगों के लिए वो सेम चीज जो मुझे चाहिए था। एंड आई नो वो जरूरतें आज भी बरकरार है, और रहेंगी बरकरार रहेंगी, क्योंकि मैं मुस्ताबाद में हूँ। मैं देखती हूँ लोगों को, डेली देखती हूँ, उनका लाइफ स्टाइल देखती हूँ, मैं चीज देखती हूँ कि कैसे कि एक यंग स्टूडेंट, वेदर इट इज गर्ल और बॉय, कैसे एक प्रेशर बनता है कि आपको क्या करना है, आपको एक सर्टेन ढांचे में ढलना है, आपको वो प्रेशर भी झेलना है कि मार्क्स आपके ज्यादा आ जाए, लेकिन आपको ये प्रेशर भी साथ में झेलना है कि मार्क्स आए, ये किस तरीके से आपको घर में वो सपोर्ट, वो पीसफुल एटमोसफेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या आपको जो वो सपोर्ट चाहिए मेंटली इमोशनली, वो सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये बहुत जरूरी चीज है जिस पर मोस्टली लोग बात नहीं करते। और बात अगर मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की बात आ जाए, तो वहां पर तो इन बातों पर शायद वैल्यू ना किया जाए कि अच्छा, मेंटल हेल्थ जैसा भी कोई चीज हो सकता है, या फिर इमोशनल सपोर्ट भी कोई लफ्ज हो सकता है। तो मेरा शुरुआत करने का पीछे यही चीज था कि जो चीजें हम लोगों को एक टाइम पर महसूस हुई, जिसकी जरूरत हम लोगों को महसूस हुई, वो हमको अभी बाकी और स्टूडेंट के लिए, बाकी और यंग जनरेशन के लिए हमको प्रोवाइड करना है। आई थिंक अजान का आवाज आ रहा होगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा इसमें। तो ये था। अभी ये कि कीप गोइंग, जाने के लिए, मतलब कंटिन्यू करने के लिए, कि मेरा इंस्पिरेशन क्या हो सकता है। और मैं, मरियम, मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि जो हमको चाहिए था, जिस चीज की हमको जरूरत थी, अभी जो यंग जनरेशन है, जो आने वाला अपने अपने
लोग हैं, वेदर लड़कियां और बॉयज, उनको हम लोग वो रिसोर्सेज दें और वो रिसोर्सेज आगे वो कंटिन्यू करें कि आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो उसके लिए सहारा बने। क्योंकि हम सिर्फ किसी से कह नहीं सकते कि अच्छा आप ये अच्छा काम कीजिए, अच्छा अच्छा रास्ता है तो अच्छे रास्ते पे चलिए, हमको चल करके दिखाना पड़ेगा। हमको उस काम को करके बताना पड़ेगा कि अच्छा ये काम सही है तो क्यों सही है और इससे कितने और लोगों को फायदा हो सकता है। हम बाज दफा बीइंग अडल्ट हम होने के नाते हम अपने घर के बाहर अपने यंग जो लड़के लड़कियां होते हैं, बच्चे होते हैं, हम उनको बोलते हैं कि अच्छा नहीं तुम सही रास्ते पे चलो, अच्छा ठीक है तुम फोन चलाना कम कर दो, तुम सिर्फ पढ़ो। लेकिन हमको ये सब चीज करके दिखाना पड़ेगा। हमको जो हम कह रहे हैं वो हमको करके उनको बताना पड़ेगा कि क्यों ये चीजें जरूरी हो सकती हैं। तो वो मैं करने की एक कोशिश कर रही हूँ। जो हम लोग कंप्लेन यूजुअली करते थे बैठ करके कि अपने सोसाइटी में कोई स्टैंड लेने के लिए नहीं है, आई एम ट्राइंग टू टेक दैट स्टैंड कि बाकी और लोग कोशिश करें कि अच्छा ये कोई एलियन स्टेप नहीं है कि अगर आप बीइंग अ गर्ल अगर आप ऐसा कोई इनिशिएटिव ले रही हैं अपने सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के कल को बेहतर बनाने के लिए, तो कोई एलियन स्टेप नहीं होगा, मुश्किल होगा लेकिन आप कर लेंगे। बाज दफा मुझसे सवाल पूछा जाता है कि कैसे कर लिया, क्या लोगों ने रिएक्शन किस तरह के दिए, क्या लोगों ने बातें नहीं बनाई। मतलब कि होती है बातें, तो होती हैं, अभी भी होती है कि क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या फायदा। मुझे मालूम है क्या फायदा है। जब मुझसे छोटी लड़कियां क्लास 10th की 12th की, ये 16 17 एज की लड़कियां आकर के बोलती हैं कि मैम मुझे भी आप जैसा काम करना है, मैम मैं बड़ी होकर के मैं भी ऐसे करके लाइब्रेरी अपने गांव में शुरू करूंगी। तो मुझे मालूम होता है, सबको नहीं मालूम होता लेकिन मुझे मालूम होता है कि ऐसा हो रहा है। तो कोशिश करते हैं वो जो असर होता है उसको हम थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन वो सोशल मीडिया पे बता सके कि लाइब्रेरी अगर खुली है तो वो सिर्फ लाइब्रेरी पढ़ने का स्पेस नहीं बनी है, वो एक सोच बना रही है, एक आइडिया क्रिएट कर रही है और एक बना बनाया एक जो जिसको बोलेंगे एक सड़ा गला आइडिया है उसको तोड़ रही है, उसको खत्म कर रही है कि अच्छा आ, लड़कियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लड़कों को इवन बिजनेस में बहुत पैसा, बेशक बिजनेस में बहुत पैसा है लेकिन हम लोग यहाँ का वो जो नैरेटिव है कि आ, बिल्कुल ही अबैंडन करके एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ बच्चों को, लड़कों को स्पेशली 17 18 एज में ही बिजनेस में लगा देना, आई डोंट थिंक इट्स अ राइट स्टेप। आई नो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत 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 ज्यादा जरूरी है बट स्टिल फॉर द सिचुएशन द इंडियन मुस्लिम हैव करंटली, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग कोशिश करें कि ज्यादा लोग एजुकेशन फील्ड में आए, ज्यादा लोग वकील बने, ज्यादा लोग डॉक्टर बने, ज्यादा लोग जज बने, अपने लिए स्टैंड ले। उसके लिए वो थोड़ा वो जो तपस्या वाला दौर है वो तो निकालना पड़ेगा, उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, वो चीज समझने की जरूरत है। तो कोशिश यही है कि हम लोग एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर सके जो एक नया आइडिया बिल्ड कर सके, पुराने आइडिया को फिर पुराने नैरेटिव को खत्म कर सके। तो ऐसा नैरेटिव जो सबको होल्ड कर रहा है, क्या लड़कियां क्या लड़के क्या औरतें सबको होल्ड कर रहा है, एक ऐसा नैरेटिव जो कि गैर जरूरी है। आप इस्लामिक नजरिए से भी देखें तो गैर जरूरी है। इस्लाम नहीं बोल रहा है कि लड़कियां ना पढ़े, इस्लाम नहीं बोल रहा है कि औरतें कुछ नया ना सीखें अपने करियर को बेहतर करने के लिए, अपने आज को बेहतर करने के लिए। सोसाइटी बोल रही है तो वो सोसाइटी वाले नैरेटिव को कोशिश हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे ही सही, बिना ऐलान किए, बिना शोर मचाए उसको तोड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बहुत दफा पोस्ट नहीं करते हैं कि क्या बातचीत या क्या चीजें हम लोग लाइब्रेरी में छोटे छोटे प्रोग्राम्स बैठक हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में बहुत तरह के लोग हैं। वो दो आपको सपोर्ट करेंगे, आठ आपके अगेंस्ट चले जाएंगे बिना ये समझे कि जो हम लोग कर रहे हैं, जो बातें हम लोग कर रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, औरतों के साथ, वो कितना जरूरी है। वो सिंपली बस यही इस पर मेरा ये जवाब है कि मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये जो दो लाइब्रेरीज हैं, इस दो लाइब्रेरीज के जरिए जो आइडिया हम लोग नया जनरेट कर रहे हैं और जो पुराना आइडिया हम लोग चेंज कर रहे हैं, आई विश कि वो जो सिलसिला जो शुरू किया है वो सिलसिला खत्म ना हो। एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड दोज पीपल फ्रॉम लोकल कम्युनिटी एज वेल जो इस लाइब्रेरी को आगे कंटिन्यू कर सके, क्योंकि हम लोग हमेशा यहाँ नहीं रहने वाले हैं। हम लोग जो लोग इस लाइब्रेरी को हम लोग शुरू किए, सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ रहे हैं, बिजी हो रहे हैं, बिकॉज ये वाला जो पार्ट था ये
सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करने का छोटा छोटा सबका एक कोशिश था, लेकिन सिर्फ हम ही लोग इस चीज को आगे बढ़ाएं ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि लोकल से ही कुछ यंग लोगों का एक टीम हम लोग बनाएं, जिसमें जो ये जिम्मेदारी है लाइब्रेरी को संभालने की, इस आइडिया को बचाए रखने की, वो जिम्मेदारी हम लोग आगे पास ऑन कर सके। और जिससे आने वाले टाइम में ये जिन लोगों को हम लोग चुनेंगे, जिन यंग स्टूडेंट को, मेंबर्स को हम लोग चुनेंगे, वो उस आइडिया को इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आगे पास ऑन कर सकेंगे, ताकि ये अपना लाइब्रेरी, मशाल लाइब्रेरी है, अमाज लाइब्रेरी है, ये जो इसका काम है, जो इनिशिएटिव है, ये रुके ना। A lot of gratitude to you, Shabnam, कि you've given me so much to learn from you. And I hope the people listening to this conversation वो भी इस initiative को support कर पाए in different ways. I know you have Instagram pages and you know your team and you care about what's the kind of efforts you're building. लेकिन anything, any way that you think the listeners can support these library initiatives of yours? आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, प्लीज एक दफा चेक करें इंस्टाग्राम हैंडल्स जा करके। अमाज लाइब्रेरी अल्हम्दुलिल्लाह है सो मच रिसोर्सेज, बट स्टिल वी नीड अर्जेंटली, वी नीड सम सेटअप ऑफ कंप्यूटर्स देयर, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास, अपने जो मेंबर्स हैं, 70% स्टूडेंट्स के पास कोई ऐसा सेटअप उनके पास नहीं जिसमें वो ऑनलाइन क्लासेस ले सके या कुछ अपने कोर्सेज हैं उसको कंटिन्यू कर सके। दे ऑलवेज रिक्वेस्ट अस कि हम लोग ऐसा 2 या 3 ही यूनिट कंप्यूटर का वहां पर हम लोग लाइब्रेरी में लेकर के आए, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी अभी तक वो कामयाबी हम लोग को नहीं मिली कि हम लोग इवन यूज्ड सेटअप वुड आल्सो वर्क। कंप्यूटर का जस्ट इन केस अगर किसी के पास यूज सेटअप है तो हम लोग उसको भी फिक्स करके यहाँ लाइब्रेरी में हम लोग एक सपोर्ट के तौर पे रख सकेंगे। इसके अलावा ये है कि अगर कोई अपने टाइम से या कुछ ऐसा ऑनलाइन कुछ करे काउंसलिंग के जरिए या कुछ भी, सिर्फ मॉनेटरी सपोर्ट सब कुछ नहीं होता, हालांकि बहुत सारे काम बन जाते हैं मॉनेटरी सपोर्ट से, लेकिन अगर कुछ लोग जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर वो अपना टाइम से, अपने आइडियाज से, अपने इनपुट से किसी भी तरीके से आगे कोई लीड हम लोग को दे सके कि कैसे हम लोग और बेहतर तरीके से अपने लाइब्रेरी इनिशिएटिव को कंटिन्यू कर सके, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि वी आर नॉट मच creative or we don't have more resources to keep going on। हालांकि इंशाल्लाह रास्ते बन जा रहे हैं, धीरे धीरे चीजें मिल जाती हैं, लोग मिल जाते हैं जो हमको लीड कर सकते हैं या फिर सपोर्ट कर सकते हैं, बट स्टिल वी नीड मोर हेल्पिंग हैंड्स टू जॉइन इन। थैंक यू शबनम। तुम्हें सुनकर एंड जिस तरीके से द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द काइंड ऑफ मोटिवेशन यू हैव, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है और एट द सेम टाइम यू नो इट गिव्स मी होप, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो इट इज़ द, I mean, I know तुमने ये कहा है कि I'm using your words, which I don't think is true, that you're just an average person, and you're just doing like a job, a small, you know, playing a small part. But I think बूंद बूंद से सागर बनता है, and I think just the two libraries have already created a kind of environment and understanding कि ये इस तरीके के initiatives have a long way to go. And like you said, if you change, अगर एक घर में एक औरत understands the value of her literacy and her education, तो पूरी नस्ल will learn from her. So thank you so much, Shabnam, for the time and sharing so much of your incredible journey with me. And I hope, and I am always rooting for your work, and I really hope that your commitment and the commitment of all the people that are supporting you in this initiative really helps the community grow and learn and really aspire to just become the best version of themselves. Thank you so much. Thank you so much, Mariam, for inviting me here, and thank you so much for doing all the effort you are doing currently with MBM. It's inspiring and appreciating. Thank you so much. Thank you. You can learn more about these libraries through the Instagram pages, links to which are available on MBM's website.
You can also support these libraries by offering your time, books, and resources such as computers and laptops. You can reach out to Shabnam through her Instagram page to discuss further ways to collaborate and support these initiatives. Thank you for listening to Maybe Muslim. I'm Mariam Haider and we'll be back with another episode in a few weeks' time. Until then, take care, lots of love and gratitude.